How are you? Hope you are doing well. In the previous class, we studied the lesson, The Autobiography of a Letter. Today, we are going to continue what we started last week. This lesson is about a letter talking about itself. We also learned the difference between autobiography and biography. We will now learn the remaining parts of the lesson. Let's begin. We will continue our chapter. यदि मैं मनुष्यों को अच्छा लगता हूँ तो वे मुझे प्यार करते हैं। अगर मैं किसी को बुरा लगता हूँ तो वे मुझे घृणा से फाड़कर बाहर फेंक देते हैं। मैं कुछ नहीं कहता और नहीं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो कागज़ के एक छोटे से टुकड़े से बना हूँ। Listen. यदि मैं denotes letter. यदि मैं मनुष्यों को अच्छा लगता हूँ तो वे मुझसे प्यार करते हैं। Humans love me because they think I am useful to them. अगर मैं किसी को बुरा लगता हूँ तो वे मुझे घृणा से फाड़कर बाहर फेंक देते हैं। If someone does not like me, they tear me apart and throw me out. यदि मैं मनुष्यों को अच्छा लगता हूँ तो वे मुझे प्यार करते हैं। अगर मैं किसी को बुरा लगता हूँ तो वे मुझे घृणा से फाड़कर बाहर फेंक देते हैं। Humans love me because they think I am useful to them. If someone does not like me, they tear me apart and throws me out. मैं कुछ नहीं कहता और नहीं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो कागज़ के एक छोटे से टुकड़े से बना हूँ। I won't speak or do not do anything because I am made just of paper. छोटे से टुकड़े. I made a small piece of paper. That's why I didn't do anything. I didn't say anything. Okay. आजकल पत्र लिखना बहुत कम हो गया है क्योंकि न तो किसी के पास समय है और न ही कोई पत्र लिखना ज़रूरी समझता है। आजकल nowadays आजकल पत्र लिखना बहुत कम हो गया है। Nowadays writing letters is very rare क्योंकि न तो किसी के पास समय है और न ही कोई पत्र लिखना ज़रूरी समझता है। Because people don't think writing it is necessary. पत्र न लिखने का एक और कारण another reason यह है कि आजकल ईमेल का ज़माना है। Also due to the reason that email has come to spotlight. Yeah. Nowadays email facilities also available. लेकिन पत्र ऐसा साधन है जिसमें अपनत्व के साथ अपने पूरे भाव व्यक्त करने का मौका मिलता है। मौका मिलना to get opportunity. मौका means opportunity. Letters are good opportunities for expressing our feelings. Isn't it? जिससे पढ़ने वाला लिखने वाला के मन के भावों से अवगत हो जाता है। Through writing, the reader understands the feelings of the writer. इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे लिखो और लिखने की कला का
भरपूर आनंद लो. That's why I say write and enjoy the art of writing. Okay. Through writing, the reader understand the feelings of the writer. That's why I say write and enjoy the art of writing. Dear students, I highly recommended writing. Writing has unimaginable powers. Let's search for them through writing. Okay. Let us watch a video. Listen students. Part 7, पत्र की आत्मकथा, autobiography of a letter. Letter told something to us. मैं कागज का टुकड़े का बना हूँ. I am made of a paper. बोल सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ. I speak, I cry. मुझे पाकर कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Some people are happy when they receive me and some people are sad. I do not do anything. मुझे नारी, बूढ़े जवान, छोटे बड़े सब खरीद सकते हैं. All people buy me irrespective of whether they are young or old. Okay. पोस्ट बॉक्स, ये क्या है? पोस्ट बॉक्स है, लेटर बॉक्स. जिसके पास भेजना होता है, स्थान का पता मेरे ऊपर लिखते हैं, पोस्ट बॉक्स में डालते हैं. इफ यू नीड सेंड मी, यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑन द envelope and deposit me on the post box. एक कौन है? डाकिया है, डाकिया, पोस्टमैन. डाकिया मुझे बॉक्स से निकालता है, थैली में डालकर ढककर ले जाता है. Postman takes me on the post box. Postman put me in a bag and go to the post office. This is a post office. डाकघर में लोहे की मोहर की छाप पड़ती है. In the post office, they put a stamp on me and applies a seal. Railgadi. After that, then I am locked inside a train compartment. रेलवे स्टेशन में रेल के डिब्बे में डाल देते हैं. Yes. I am locked inside a train compartment. इस तरह मुझे घर घर पहुंचाया जाता है. This is how I reach every place. Okay, I hope you understood very well. Then we will go through the textbook activity. Answer the following. Listen. See. Answer the following questions orally. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. First question.
पत्र पाकर लोग कैसा अनुभव करते हैं. पत्र पाकर लोग कैसा अनुभव करते हैं. What does it mean, you know? What feelings does one have when they get a letter? What feelings? Some people feel happiness and some people feel sad. Okay. पत्र पाकर लोग means people. पत्र पाकर कुछ लोग खुश होते हैं. Some people feel happiness. कुछ लोग पत्र पाकर दुख का भी अनुभव करते हैं. Some people feel happiness and some people feel sad. Got it? पत्र पाकर कुछ लोग खुश होते हैं. कुछ लोग पत्र पाकर दुख का भी अनुभव करते हैं. सेकंड वन, पत्र कहाँ से खरीदा जाता है. पत्र कहाँ से खरीदा जाता है. It means where do we get letters from? Where do we get? We get the letters from the post office. पत्र डाकघर से खरीदा जाता है. पत्र कहाँ से. डाकघर से. डाकघर means post office. पत्र डाकघर से खरीदा जाता है. थर्ड वन, पत्र को कहाँ डाला जाता है. पत्र को कहाँ डाला जाता है. Where do we deposit the letter? Where do we deposit? Yeah. We deposit into post box. पत्र को पोस्ट बॉक्स और लेटर बॉक्स में डाला जाता है. नेक्स्ट वन, डाकघर में पत्र के ऊपर क्या पढ़ती है. डाकघर में पत्र के ऊपर टॉप ऑफ द लेटर क्या पढ़ती है. What does the letter above in the post office? We put seal on them. पत्र पर लोहे की मोहर से छाप पड़ती है. पत्र के ऊपर क्या पड़ती है. लोहे की मोहर से छाप पड़ती है. नेक्स्ट वन, पत्र को गंतव्य स्थान पर कौन पहुंचाता है. पत्र को गंतव्य स्थान पर कौन पहुंचाता है. How does the letters reach their destination? Yeah, through train or aeroplanes, buses, etc. That like the letters reach their destination. पत्र को रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है. पत्र को रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर. गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन. गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है. Once again, पत्र पाकर लोग कैसा अनुभव करते हैं. What feelings does one have
when they get a letter. Some people feel happiness and some people feel sad. पत्र पाकर कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग पत्र पाकर दुख होता है. पत्र कहाँ से खरीदा जाता है? पत्र डाकघर से खरीदा जाता है. पत्र को कहाँ डाला जाता है? पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाला जाता है. डाकघर में पत्र के ऊपर क्या पड़ती है? डाकघर में पत्र के ऊपर क्या पड़ती है? पत्र के ऊपर लोहे की मोहर से छाप पड़ती है. पत्र को गंतव्य स्थान पर कौन पहुंचाता है? गंतव्य स्थान पर रेलगाड़ी पहुंचाता है. My dear children, let us watch a video. एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया, वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट्स तक लॉन्च किए. ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अद्भुत कहानी, और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां. APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ. अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनके पिता जैनुल अब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे. कलाम की माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी. उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकौडी और धनुषकौडी से वापस रामेश्वरम ले जाते थे. कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी. वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे. कलाम अपनी सरल ज़िंदगी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदा और उनकी आदत थी रोज़ सुबह 6:30 से 7 के बीच उठना और रात को 2 बजे तक सोने की. धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी. यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस. कलाम के पूर्वज काफ़ी अमीर थे और उनके पास कई एकड़ ज़मीनें थी. जब पंबन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार पूरा खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से कश्ती की लोगों को ज़रूरत नहीं रही. इस घटना के बाद उनका व्यापार तो तहस नहस हुआ ही सही, लेकिन साथ ही साथ उनके पैसे और ज़मीनें भी धीरे धीरे खत्म हो गई. कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था और कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा. जब वो स्कूल गए तब उनके अंक काफ़ी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उनको हमेशा एक गजब और मेहनती छात्र बोला गया और उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की. वो हमेशा गणित पर घंटों तक काम करते थे. श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया और वो 1954 में फिजिक्स के ग्रेजुएट बने. 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की. जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और बोला, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करा तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी. कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए. वो 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 पोजीशंस खाली थी. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए. वहां पर वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े. उन्होंने अपना करियर एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन से चालू किया. कलाम इनकोस्पार कमेटी में भी शामिल थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया. विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे. फिर 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में
तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपांडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम को बुलाया भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और लाइफ हैकर्स वो सब अचीव कर पाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कैरिस्मा के हैक समझना चाहते हैं? देखिए और सब्सक्राइब करें मेरा दूसरा चैनल यू कैन डू वंडर्स। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी इन गुप्त प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और इनकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीजों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम्स चालू करने के लिए बोला। काफी सारे मिसाइल प्रोग्राम्स में भागीदार रहने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा योगदान था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स की बहुत आलोचना हुई क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी समय और पैसा लगा और इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से लेकर 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे और इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण ने मीडिया में कलाम का नाम काफ़ी ऊंचा कर दिया था, लेकिन साइट के डायरेक्टर के संथनम ने कहा कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और ये एक असफल घटना थी और उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो गलत है। लेकिन फिर चिदम्बरम और कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर कलाम की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिले और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को करीबन 1 लाख वोट ही मिल पाए। ये जीत बहुत ही बड़ी जीत थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न। भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से प्रचलित हुए। जब उनके 5 साल राष्ट्रपति के तौर पे खत्म हो गए तब उन्होंने अपने वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ये बोलने के 2 ही दिन बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने और भी उन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए। 2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था। कलाम ने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और ये सारी बुक्स काफ़ी पॉपुलर हुई। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए जहां पर उनको क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लानट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और वो गिर गए। उनको फिर बेथनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वो 7:45 पर दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द श्रीजन पाल सिंह से बोले। उन्होंने कहा, फनी गाय,
Are you doing well? एपीजे अब्दुल कलाम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, खासकर युवा उनको अपना आइडल मानते हैं। तो ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। Dear students, I hope you understood today's lesson. Today we learned a few things like advantages and disadvantages of postal service, the feelings included in a letter, etc. As today's homework, you have to read the lesson and also write the meanings and the question answers once in the notebook and also in the copybook. You have to read the lesson and send a recording of your reading. From the video shown in the class, find out 5 new words and write their meanings. Please submit this homework by tomorrow. There will be a class test tomorrow. That's the end of the class. See you all next week. Thank you.